you have to continuously make the efforts to make the child learn the language. So it is progressing from no language to efficient language. Okay. So because of this second language acquisition um, uh, is a continuous process. It is a never-ending process, just like first language. First language, because we are speaking in the context, from every level, child is getting exposure. So you need not do many efforts, but particularly regarding other language acquisition, whether it is a second language, foreign language, we have to provide students with ample opportunities. They have to encounter the language at each and every corner of their life. You have to expose them to those many opportunities in order to develop that native speaker level competency. That is the idea. So it is a continuum. You have to continue the efforts. You cannot leave it. So why any person learn the language? Because the language spoken in the home, यहाँ home नहीं, in the context, because my mother tongue is different and I am living at a other place in other state. Okay, so I have to learn that language. My contextual language, it is second language, so I have to learn it. Because being a person from other state living in Gujarat, I should learn Gujarati for my survival in the society. Okay, this is one reason. Next, in school, it is being offered. Okay, another reason is the second language is needed uh, because it is offered at school. It is the contextual need and internal motivation of the learner. Internally, I am motivated to learn so many languages. I am natural. I have a natural interest towards languages, so I am learning. See, the learning environment that is encouraging learner to learn more languages. See, in our school system, we have to learn three languages. So students are getting exposed. The ability of a person to use a second language will depend on his or her family's ability to speak more than one language. It is important for parents, caregivers to provide strong language model. So even the learning environment at school, even at home, if parents are knowing the importance of learning more than one language and they are confident or capable enough to develop that language, then the second language learning is easy. The competency of the child will be more in comparison with being the first generation learner. Okay, so if one cannot use the language well, one should not be teaching it. So as a parent, if you are not confident, never take up the teaching aspect, never try to develop, because you are always ending developing a wrong model. You yourself is not confident, so you should never attempt it. Okay, so because of मैम some थोड़ा सा purpose. हिंदी में बता दीजिए. Okay, okay, okay. Because of some purpose we are learning the language. ठीक है, so second language हम सीख रहे हैं. इसके लिए हमारा एक जरूरत थी, मुझे स्कूल में वो ऑफर किया गया है. अदरवाइज मेरा ऐसा उसमें अभिरुचि है, लैंग्वेज सीखने में मेरे अभिरुचि है. अदरवाइज देखो, मैं दूसरी जगह से आया हूँ, यहाँ लैंग्वेज स्पोकन इन होम, मतलब मेरा होम लैंग्वेज डिफरेंट है, बाहर की लैंग्वेज डिफरेंट है. तो घर में मुझे लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा. मेरा खुद की मातृभाषा है, बट बीइंग ए पर्सन स्टेइंग इन गुजरात, गुजराती मेरा फर्स्ट लैंग्वेज होगा, घर में जो बोलते हैं वो सेकंड लैंग्वेज होगा, तो नेचुरली मुझे वो भी सीखना पड़ेगा. बट ऐसा सेकंड लैंग्वेज सीखना है तो दी रीजन, वन कंडीशन इज पेरेंट्स शुड बी aware of the importance and parents should be competent enough to develop that language. मुझे नहीं आता है तो I must at least provide my child with a tutor, efficient tutor. tutor के पास भेज के मुझे थोड़ा सीख के उसको सिखाने की अपॉर्चुनिटीज देना है. बट इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एनफ, मुझे लैंग्वेज यूज करना अच्छा नहीं आता है. आई कैन अंडरस्टैंड गुजराती बट मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो मुझे मेरा टूटा फूटा लैंग्वेज बच्चे को सिखाना नहीं है. आई शुड प्रोवाइड रादर दैट एनवायरमेंट. ठीक है, सो नाउ वी आर कमिंग टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ acquiring second language. So
This is there are 5 stages: silent and receptive stage, early production stage, speech emergence, intermediate fluency, and continued language development. So if you just see the thing, here we are exposing the child. Afterwards, the person needs to take great interest to improve further upon. This is true for any language acquisition. फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, जहां भी हम बच्चे को एक हद तक हम उसको एक्सपोजर दे पाते हैं, आफ्टरवर्ड्स क्या है कि बच्चे में ये इंटरेस्ट होना है, अदरवाइज बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में हमको डालना है कि वो खुद कुछ प्रयास करे अपने आप को इम्प्रूव करने की। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज पर्टिकुलरली इट इज द लैंग्वेज नॉट स्पोकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग। तो इसके लिए हमको ज्यादा प्रयास करना है, बच्चे को ऐसी लेवल पे आना है। अभी यही होता है कि घर जो स्कूल का लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ मेरी लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं, तो बच्चा खाली बोलना सीखता है, वो भी मैं प्रयास करूं, मैं उनको उनके साथ बात करूं। अदरवाइज वंस आफ्टर 7 years तक मैं उनसे वो बात भाषा में बात नहीं किया, दे कैन अंडरस्टैंड बट दे कैन नॉट स्पीक एंड डेवलप, क्योंकि घर की जो लैंग्वेज है वो स्कूल में आती ही नहीं। बहुत सारे बाहर की बच्चे जो पर्टिकुलरली साउथ इंडियंस, नॉर्थ ईस्टर्न से आए हैं, उनका लैंग्वेज यहाँ माहौल में एग्जिस्ट होता ही नहीं। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला में साउथ इंडिया से यही रेसिस्टेंस आता है कि हम क्यों सीखे, आप हमारा लैंग्वेज सीखते ही नहीं हो, तो हम थर्ड लैंग्वेज जैसा हिंदी क्यों सीखे, कुछ दूसरा संस्कृत सीखते हैं। आप तो नहीं सीख रहे हो, आप अपना लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, और दूसरा एक हिंदी से मिलता जुलता, तो हम सीखेंगे नहीं। सी दिस इज द आइडिया, दिस इज द वे, बिकॉज मेरा लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं है। जो साउथ इंडियन यहाँ आके रहता है, पेरेंट्स बहुत जबरदस्ती करके उसको सिखाया, नहीं तो खाली बोलना सीखेगा, बोलते भी नहीं है तो वो भी नहीं आता, दे लूज द लैंग्वेज। तो ये these are the different situations that are existing. So as a parents of children and as a teachers who are teaching the children, you have to understand all these concepts. कहाँ आपके बच्चे भी है तो आपके घर का लैंग्वेज उनके लिए सेकेंड लैंग्वेज है, तो आपको इम्पोज करके उसको सिखाना है, अदरवाइज दे लूज द लैंग्वेज। दे लर्न 3 languages but are of not use for your home environment. This is also one रियलिटी। आपको ये सब सीखना है, एटलीस्ट बोलना सिखा, वो बाद में थोड़ा वो जाके फिर जाके अपनी गांव में ही रहना पड़े तो बोलना तो आता है, आगे आउट ऑफ नीड, जरूरत है तो वो बाकी भी सीखेगा। ठीक है, सो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज ऑलवेज यू हैव टू गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। हमको बहुत ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देना है एज ए पेरेंट्स एंड टीचर्स। So we are coming to the first stage, silent and receptive stage. Silent and receptive stage is the stage where the student is first getting some opportunity, get exposed. Language से परिचित होने के लिए यहाँ student को opportunity मिल रही है, वो पहली बार language को सुन रहा है। ठीक है, वो लैंग्वेज में बोला हुआ कुछ शब्द सुने हैं, नहीं तो एक वीडियो देखा है, एक फिल्म देखा है, पहली बार वो लैंग्वेज से परिचित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि मैं आप कहीं अपनी गांव छोड़ के दूसरी जगह जाके सेटल हुए हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, एजुकेशन पर्पस, सो सडनली यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड। वहाँ आपको दूसरा लैंग्वेज बोलते हुए आपकी आजू बाजू में सुनाई दे रहे हैं। आप घर से स्कूल में गए हो, स्कूल में दूसरा लैंग्वेज, धीरे धीरे आपको बच्चे बात करते हुए, आपकी मदर टंग गुजराती हो, गुजराती मीडियम में ही गए हो, लेकिन स्कूल में आप ये सब सुन रहे हो। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज से धीरे धीरे परिचय हो रहे हो। ठीक है, सो दिस स्टेज, अगर आप एक फॉर्मल सिचुएशन में जाके सुन रहे हो तो थोड़ी घंटों में आपको भी सिखाना शुरू करते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया दिस स्टेज में लास्ट फ्रॉम सेवरल आवर्स टू सेवरल मंथ्स, बहुत साल भी बीत जाते हैं, किसी किसी को टाइम नहीं मिलता है कि वो लैंग्वेज सीखने के लिए, वो तो समझते हैं तो अपनी लैंग्वेज में बोल के वो काम निपटाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आए हुए लोगों को यहाँ गुजराती नहीं आता है। ठीक है, दे डू नॉट नो गुजराती,
तो वो अपनी लैंग्वेज से ही, अभी मैं कुछ खरीदने जाती हूँ मार्केट में, मुझे पूछने की जरूरत नहीं, वो दिखा के ये कितना है तो वो बताएगा, वो इतने में मेरा काम निपट जाता है। विथ साइन आल्सो आई कैन मैनेज। सो दिस स्टेज, दिस वी आर रिसीविंग द लैंग्वेज, हम लैंग्वेज से परिचित हो रहे हैं। During this time, new language learners typically spend time learning vocabulary and practice pronouncing new words. So because I am getting exposed, तो मैं अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, नहीं तो वो चित्र दिखा के इसका नाम क्या है। सो आई एम ट्राइंग टू एक्वायर वोकेबुलरी, मैं अपनी शब्द भंडार को विकसित करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, चित्र दिखाती हूँ, नहीं तो सामने दिखाती हूँ। काम वाली घर में आती है, उससे पूछ के लेडीज पहले सीखते हैं क्योंकि जरूरत है। तो वहाँ वो सब बोल के जो जो काम करना है उसका धीरे धीरे वर्ड्स पकड़ के अपनी लैंग्वेज में मिक्स करके यूज करते करते वो लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन भी सीखते हैं, वोकैबुलरी भी सीखते हैं। तो एज ए टीचर हिंदी में ज्ञान एक शब्द है, वो संस्कृत है, हिंदी में उसको प्रोनाउंस करते हैं ज्ञान। तो वो प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, तो पर्टिकुलरली वो कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी हमको सिखाना है। सो दिस इज रिसेप्टिव स्टेज, दे आर रिसीविंग द लैंग्वेज, वो शब्द को समझ के शब्द पहले सीख रहे हैं। तो जब उसके पास थोड़ा शब्द भंडार होगा तब वो उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो engage in self-talk, don't normally speak the language with any fluency or real understanding. यहाँ क्या है कि they always try to understand because I have one language, मेरा अपना खुद का लैंग्वेज है जो मेरे माइंड में है, मेरी ब्रेन में है। तो जो भी मैं सीख रही हूँ मैं उससे कंपेयर करके फिर उसकी मेमोरी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ऐसे सोचती हूँ, अगर ये बात मुझे गुजराती में बोलना है, मेरा नाम क्या है, तो मुझे गुजराती में क्या बोलना है, तो मैं धीरे धीरे सेंटेंस वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करती हूँ। ये सही है नहीं है, दिस इज सेल्फ टॉक। ओरली वी आर नॉट कन्वेइंग एनीथिंग, वो बहुत ज्यादा फ्लुएंसी भी नहीं है, टूटा फूटा लैंग्वेज है, बिल्कुल नहीं बोलते ऐसा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज देमसेल्व्स इन सेल्फ टॉक। हम लैंग्वेज को पहले अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे माइंड में वो इमेज है तो बोलने में मैं पूछूं, क्योंकि गलती आए तो क्या होगा, सामने वाला समझेगा नहीं, कुछ और awkward सिचुएशन हो सकता है। तो रियल अंडरस्टैंडिंग मेरा एग्जैक्ट ये नहीं, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, ये हो सकता है, ये वर्ड हो सकता है, ऐसा मैं सोच के लैंग्वेज को बाहर लेके आ रही हूँ। तो यहाँ हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। तो यही इसी के बारे में नीचे जो सेंटेंस लिखी हूँ। Some disagree that second language learners are totally silent when they are in this first learning stage. वो बिल्कुल कुछ भी बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। Speech is fundamental in language acquisition and learners excel in language acquisition when they apply what they learn as they learn it. उसको जैसे समझ में आया उसको ऐसे ही वो बाहर नहीं लेके आए, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं किया, तो सामने वाले है ये बोलना है, मैं अपने आप में बात करती रहती हूँ, तो कब मैं सामने आपके सामने बोलूं, तो मेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम सूच है, ऐसा कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड बोलूं, तो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए सामने वाले पूछ के हमको सिखाएगा। सो यू हैव टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। तो यहाँ थोड़ा तो लैंग्वेज बोलेगा लेकिन वो ज्यादा फ्लुएंट नहीं होगा और बहुत सुधरा हुआ लैंग्वेज नहीं होगा, टूटा फूटा गलतियों से लैंग्वेज आता रहता है। सामने वाले या बीइंग टीचर्स फॉर्मल इनफॉर्मल एनवायरनमेंट्स में लोग उसको समझ गया वो चुप रहेंगे, नहीं समझ गया तो समझ के क्या है क्या चाहिए ऐसा कुछ दे करेक्ट इट।
अदरवाइज ये लर्निंग एनवायरनमेंट में दे ट्राई टू, ये क्या हो रहा है, समवन इज प्रेजेंटिंग। हेलो, आप सुन रहे हैं? ओके ओके, मुझे लगता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हुआ। सो in this first stage they are receiving the language and trying to use that received language at whatever level, टूटा फूटा सेंटेंस है, एक दो शब्द है, जो भी है वो यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। then gradually with this communication they enter into the early production. Okay, this stage may last about 6 months, during which language learners typically acquire an understanding of up to 1,000 words. They may also learn to speak some words and begin forming short phrases, even though they may not be grammatically correct. So now yes, किसी का ऑडियो है? क्या हो रहा है? किसी का ऑडियो ऑन है, बंद करो। कौन है? किसकी ऑडियो ऑन है? नाम भी गीता। हाँ। So early production stage is the moment the person acquires around 1,000 words, vocabulary. They develop the confidence to produce the language. At least they can attempt to speak the language, but here they can produce sentences, but they may not be grammatically correct because they haven't developed that grammatical structure, nothing. व्याकरण संबंधित जो भी जानकारी है बहुत अच्छा नहीं होता है. They are just imitating and picking the language from the surrounding. Whatever teacher taught, that much is known. Whatever teacher teaches, that much structure is known. एंड हियर ग्रामेटिकली करेक्ट क्यों नहीं होता है कि मुझे नॉलेज नहीं है. सो आई रियली डू नॉट नो व्हाई आई नीड टू स्पीक लाइक दिस. ओके, बिकॉज आई हैव नो knowledge of grammar, I do not know the rules and regulations. I just know I have to speak this sentence like this. So I am just imitating. What is your name? So why you have to ask what is your name ही क्यों पूछना है, हमें पता नहीं. Why you never know, you at this stage you do not know the answer why. So you are just imitating. So the language may not be grammatically correct, but their language is improved. Now they are in a position to use short phrases or sentences. To some extent their language is because their vocabulary is improved. Okay, so from this they are gradually going into a stage of speech emergence. So after reception to 6 months they develop this speech emergence. Now they are in a position to communicate, at least orally. So by this stage learners typically acquire a vocabulary of up to 3,000 words. See here, when you see the second language acquisition, everything is dependent on vocabulary. The more vocabulary you gather, the more you are confident to use the words. Otherwise I tend to use English words which are known to others, Hindi words. We combine the language we know and try to use it. So एक mixed language बनता है. So it is always better to expose children to more vocabulary. You encourage them to develop more vocabulary. घर में भी वो कुछ ऐसा करे, आप ऐसा homework दो, ऐसा assignments दो. So let them develop that vocabulary. So speech emergence कब आया? 1,000 words से, when they improve their vocabulary to 3,000 words. So they learn to communicate using that vocabulary. Okay, sentences, questions, थोड़ा language बोलने की कोशिश जो करते हैं तो उससे उसका gradually speech आता है. Now they are developing fluency, so now they can speak the language. First level of spoken language, fluency in language, it is coming. Again, they may not be grammatically correct, but this is an important stage during which learners gain
greater comprehension and begin reading and writing in their second language. Now I have 3000, around 3000 words with me. Now I can start my communication at higher level. Now I can read from books, and even I can produce my own words. I can write, I can because I have enough exposure with listening and speaking. I have seen so many things. So now I can attempt to learn reading and writing. So here you can start, because now learner has developed certain understanding. यहाँ आप 12 कड़ी वो सब उसका exposure दे सकते हो. They can धीरे धीरे वो immediately पकड़ेगा, because already they have their first language learning experience. So they learn it and they go into the higher level of reading and writing. First language में जैसा प्रैक्टिस करा के हमने अक्षरमाला सिखाए हैं, लेटर्स सिखाया, देन 12 कड़ी सिखाया, ऐसा इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे ट्रांसफर दैट लर्निंग. सो सेकेंड लैंग्वेज की अक्षर वो सब जल्दी सीखते हैं. वर्ड्स इन सब के साथ हमको थोड़ा हायर लेवल राइटिंग स्किल्स पे थोड़ा ज्यादा वहाँ ज्यादा एफर्ट्स देना पड़ेगा. ओके, from there now they are moving into the, now they can listen to the language, they can speak the language, and then now they started reading and writing also. So now they are moving into the next stage, intermediate fluency. At this stage, which may last for a year or more after speech emergence, learners typically have a vocabulary of as many as 6000 words. इसलिए language fluency आपके पास है, इतना आप अपने आप को कॉन्फिडेंसली बोलना है तो यू शुड, आपके पास किसी भी लैंग्वेज के बारे में इफ यू हैव 3000 वर्ड्स वोकैबुलरी आपके पास है, तो आपके पास क्षमता है, यू आर फ्लुएंट इन दैट लैंग्वेज. बाद में आप जितना डेवलप करते हो उतना आप आगे जाते हो. लैंग्वेज फ्लुएंसी आप में आया, इतना हम बोल सकते हैं, देन यू हैव टू केयरफुली एडवांस इट टू द नेक्स्ट लेवल. सो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ इंटरमीडिएट फ्लुएंसी करके क्यों बताया, बिकॉज द फर्स्ट स्टेज आई टोल्ड यू इट इज मूविंग फ्रॉम नो लैंग्वेज टू नेटिव लैंग्वेज स्पीकर कॉम्पिटेंसी. तो इसलिए हम ये दोनों स्टेज आप देखो, अभी तक आपके लिए आप एटलीस्ट 3000 वर्ड्स तक आए हो इन ए नॉर्मल सोसाइटी, जहां आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, ओनली कम्युनिकेशन इज योर नेसेसिटी, वहां जीना है एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक. सो नाउ यू आर कंसिडर्ड फ्लुएंट, क्योंकि आप पढ़ लिख सकते हो, बस बोल सकते हो, फ्लुएंटली बोल सकते हो. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर सोशल कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो आपको करते हैं, लेकिन पढ़ाई में इफ यू वांट टू मूव टूवर्ड्स नेटिव लैंग्वेज speakers competency, then you have to improve, definitely you have to improve your vocabulary. So we are talking about it. Okay, तो जब आपका 6000 words आया है तो आपकी फ्लुएंसी और भी बढ़ गया है. They usually acquire the ability to communicate in writing and speech using more complex sentences. तो इंटरमीडिएरी एफिशिएंसी मतलब अभी आपका स्पोकन लैंग्वेज तो बहुत अच्छा है, everyone can follow, and simultaneously now you have developed the reading and writing and speaking. Now you can write also, you can communicate with people with writing and speech. आपका हाई लेवल पे आया है, आप अच्छा सा लोकल लैंग्वेज जैसा ही आप अपना लैंग्वेज को यूज कर सकते हो. नाउ यू आर डेवलपिंग दैट फ्लुएंसी ऑफ ए नेटिव स्पीकर की, जो राइटिंग स्पीकिंग कैपेसिटी है उस तरफ आप आ रहे हो. एग्जैक्टली उसकी जैसा नहीं है, बट यू कैन नाउ राइट, यू कैन यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस. ग्रामर तो आपको पता चला, बट बेसिक ग्रामर है, उससे आगे जाके 2-3 सेंटेंस मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख सकते हो, कंपाउंड सेंटेंसेस. यू कैन कन्वे योर आइडियाज मोर क्लियरली, दैट इज द मीनिंग. This is also a crucial stage as learners begin actually thinking in their second language, which helps them gain more proficiency in speaking it. So this is more important. In our context, what never happens is we never provide students to think in that particular language. We always use the translation method. कोई भी word वहाँ आया, इंग्लिश का भी है, immediately आप गुजराती में मीनिंग बताते हो, हिंदी में मीनिंग बताते हो, नहीं तो अपनी मदर टंग. So English to mother tongue, no, English to English, Gujarati to Gujarati. So if you want to learn any language,
ट्राई टू डेवलप वोकेबुलरी इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो जस्ट बच्चे समझना है, एक बार बोलो, बट नेवर अलाउ देम टू कीप दैट वर्ड इन देयर माइंड। उसके कम्युनिकेशन में फिर आना नहीं है, बच्चों को आपको बोलना है। आप गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम में जाते हो पढ़ाने के लिए, वहां आपको इंग्लिश पढ़ाना है, तो व्हाट यू डू, यू इमीडिएटली ट्रांसलेट एवरीथिंग। ट्रांसलेट करना नहीं है, बच्चे को पता चलने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट फ्लुएंट। ये वर्ड का मीनिंग गुजराती में ये है, हिंदी में ये है, एक बार बताना है, बट इमीडिएटली यू हैव टू इम्पोज कि मुझे इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड ही चाहिए, आपको समझ में आने के लिए मैंने बोल दिया, बट नेवर यूज दैट वर्ड। अगर ये एक्सरसाइज आप नहीं किया, दे कैन नेवर डेवलप दैट लैंग्वेज इन ए मेंटल सेंस। वो उस लैंग्वेज में सोच नहीं पाएंगे। सभी टाइम दे ट्राई टू लर्न इंग्लिश इन गुजराती सेंस, लेकिन एग्जैक्टली लैंग्वेज ऐसा नहीं होती है। दिस इज द फॉल्ट थिंग। आप सोचते हैं मैंने बच्चे को बता दिया, नाउ दे आर एफिशिएंट टू लर्न, बट वो लैंग्वेज को समझते हैं पर लैंग्वेज का उपयोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज यू नेवर डेवलप देयर कैपेसिटी टू थिंक इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके, सेव वर्ड है तो उसको हिंदी मीनिंग बता के आपने छोड़ दिया, नहीं, आपको इंग्लिश मीनिंग देना है, और दो इंग्लिश वर्ड्स ढूंढ के लाओ। ऐसा एक्सरसाइज दिया तो उसका वोकैबुलरी बढ़ा है। नाउ दे आर कॉन्फिडेंट टू यूज दैट वर्ड और एक्सप्लेन दैट वर्ड बिकॉज दे हैव वोकैबुलरी। पर आप इंग्लिश की वोकैबुलरी को गुजराती में करके गुजराती में आपको ट्रांसलेट किया, तो वो वर्ड वो भूल गया, सेव वर्ड भूल गया, तो दूसरा वर्ड उसको पता नहीं। दिस इज हैपेंस, इवन इट हैपेंस विथ मी, बिकॉज आई नेवर स्टडीड लाइक दैट, आई नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो this is the stage. Next, continued language development and advanced fluency. So this is the last stage. It takes most learner at least 2 years to reach this stage, and then up to 10 years to achieve full mastery of the second language in all its complexities and nuances. तो एक language सीखना हम शुरुआत किया, तो in order to achieve that native level competency you have to struggle like this. हम कहाँ छोड़ते हैं, वो बीच कुछ बोलना थर्ड स्टेज में हम छोड़ देते हैं, बिकॉज इट इज नॉट नीडेड फॉर अस। बट हम ऐसा सीखने से, कंटिन्यूस एफर्ट्स रखने से हम नेटिव लैंग्वेज एग्जैक्टली हम इन द क्लियर सेंस वी हैव अचीव्ड द सेकंड लैंग्वेज। तो थर्ड स्टैंडर्ड में हमारा एटलीस्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में शुरू होता है, तो 10th स्टैंडर्ड आने तक बच्चे के साथ हमको ऐसे एफर्ट्स करना है कि दे रीच दिस एडवांस्ड फ्लुएंसी, जो जहाँ जनरली नहीं होता है। उसको अपना फर्स्ट लैंग्वेज ही नहीं आता है, तो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश यूज करना ही नहीं आता है, वो दूसरा लैंग्वेज क्या सीखेगा, तो वो किसी भी लैंग्वेज में एफिशिएंट नहीं है। दिस इज व्हाट इज हैपन। ओके, सो इट टेक्स मोस्ट लर्नर्स, ये तो मैंने बता दिया, 10 years, क्योंकि वोकैबुलरी कंटिन्यूसली इंप्रूव होना है। 9th स्टैंडर्ड में आता है, वो नया है। हम ऐसा सोचते हैं कि ऑलरेडी वो हुआ तो वो अपने आप समझेंगे, नहीं समझेंगे। सो यू हैव टू always make efforts at that level. Second language learners need ongoing opportunities to engage in discussions and express themselves in their own language in order to maintain fluency in it. तो हमको फ्लुएंसी को उस लेवल पे बरकरार रखना है सभी टाइम। तो वो एक बार सीख लिया, उसके पास वोकैबुलरी है, नाउ दे कैन कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन को फर्दर लेके जाओ, राइटिंग को हायर लेवल पे लेके जाओ, स्पीकिंग को हायर लेवल पे लेके जाओ। ये दोनों एफर्ट्स जब तक आप नहीं करते हो, लैंग्वेज तो वो सीख रहा है, बट दे आर नॉट ओनिंग दैट कैपेसिटी, दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। आप जितना दिया उतना ही उसका है, क्योंकि आपने उसको आगे जाके उसके साथ कुछ प्रयास नहीं किया कि वो लैंग्वेज सीखे। तो वो जितना वहां तक सीखा, आपने जितना दिया उतना सीखा है, बट यू हैव टू मेक देम द इंडिपेंडेंट लर्नर। वो इंडिपेंडेंट लर्नर कब होगा, व्हेन यू एंगेज देम इन डिस्कशंस एंड यू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन देयर न्यू लैंग्वेज। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसलिए द मोमेंट दे एंटर इनटू द स्कूल, कहीं फॉरेन लैंग्वेज सीखने भी जाओ, द फर्स्ट अटेम्प्ट इज they never allow you to speak in your language. आपको समझ में आया नहीं आया, एक्सपोजर भी होता है, आप पकड़ लेते हो। एक्सप्लेन, स्पीक इन दी लैंग्वेज यू आर लर्निंग। फॉरेन लैंग्वेज है, उसी में फ्रेंच है तो फ्रेंच में बात करो, तभी आपके ऊपर वो इम्पोजिशन प्रेशर होता है एंड यू लर्न दैट लैंग्वेज। दे आर प्रोवाइडिंग यू द कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी। जबरदस्ती आपको
वो लैंग्वेज बोलने की, समझने की एटमॉस्फेयर में वो डालते हैं। तो इफ मैं आपसे तरस खा के अपनी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया, यू विल नेवर लर्न द लैंग्वेज। सो नेवर प्रोवाइड योर स्टूडेंट्स दैट तरस खाना मूवमेंट्स। आप तरस खाए तो बच्चे सीखेगा ही नहीं। सो इम्पोज देम टू स्पीक इन दी लैंग्वेज, तभी वो सीखेगा, बोलेगा। एटलीस्ट आपके साथ वो बेसिक स्टेप्स तो सीखेगा, तो आगे जाके वो एडवांस्ड फ्लुएंसी तक आएगा। सो एज ए टीचर्स इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम द रिसेप्टिव स्टेज टू एडवांस्ड फ्लुएंसी। इसके लिए आपको वोकेबुलरी डेवलप करना है, प्रोनाउंसिएशन सिखाना है, धीरे धीरे उसको स्किल्स के जरिए लैंग्वेज को यूज करने की, लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करने की कैपेसिटी डेवलप करना है। ये अपॉर्चुनिटीज जब तक आप नहीं देते हो, इंग्लिश है, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज बच्चा, दे कैन नेवर लर्न द लैंग्वेज, दे कैन नेवर ओन द लैंग्वेज। वो मैं ओनर हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इन दिस लैंग्वेज, आई एम कैपेबल ऑफ राइटिंग इन दिस लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंस उसमें कभी भी नहीं आएगा। Okay, so in conclusion, I want to say the key to learning a new language and developing proficiency in speaking and writing that language is consistency and practice. आपको फ्लुएंट हो, जब आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, तभी आपका लैंग्वेज सीखना या एक्विजिशन पूरा हुआ है। आपको किसी की बोल रहे हैं, आपको समझना है, फिर बात करना है। कोई राइट किया, उसको रीड करना है और आपको खुद लिखना है। तो इसलिए स्पीकिंग एंड राइटिंग, उसकी फ्लुएंसी जितना आता है तब तक आपका एक्विजिशन खत्म नहीं हुआ। जब आप कंसिस्टेंसी, आप उसके साथ जुड़ के, अपने आप को जोड़ के प्रैक्टिस नहीं करते हो, लैंग्वेज नहीं आएगा। अपने आप में सीखना नहीं, उसको जबरदस्ती यूज करना है, एक माहौल में अपने आप को रखना है। A student must converse with others in the new language on a regular basis in order to grow their fluency and confidence. जब तक एज ए स्टूडेंट आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, दूसरों से बात नहीं करोगे, तब तक पता नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक देम अवेयर कि मुझे आता नहीं, मुझे करेक्ट करो। Otherwise, within your class, you provide that opportunity. In addition, it's important for students to continue to work with a classroom teacher on a specific content area related to the new language such as history, social studies or writing. तो आपको जबरदस्ती अपने लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ हिस्ट्री, सोशल स्टडीज ऐसा किया नहीं तो आप कुछ ले, किसी न किसी हीरो के बारे में कुछ ना कुछ, इसमें मैं कुछ लिखना है, मुझे बोलना है, ऐसा तुम डेवलप करो दूसरों को। यहाँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल एनवायरनमेंट, वी आर यूजिंग द वर्ड क्लासरूम टीचर, नहीं तो और किसी को दिखाओ जिसको वो लैंग्वेज आता है, करेक्शंस करो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश एज ए स्टूडेंट आपको भी करना। तो जो सीख रहा है वो कब अपने आप को प्रैक्टिस में रखेगा, आप जबरदस्ती कुछ कोशिश में रहोगे, अदरवाइज वो सेकंड लैंग्वेज नहीं आएगा। ठीक है, so second language acquisition is basically we are exposing the students, we are exposing ourselves because of some need, otherwise हम उसको सीखते नहीं। so we need consistent practice, consistency हमको चाहिए। ओके, नीचे ये 3 references, इसमें से मैंने ये पावर पॉइंट बनाया है, तो आपको थोड़ा एडवांस्ड रीडिंग चाहिए तो मैं तो बहुत कम लिया इसमें से। so if you want some advanced reading आप इसमें से ले सकते हो। Okay, now I am coming to this meeting and stop sharing. Okay, so with this we completed the first point of unit 2. Okay, next गुरुवार को हम जब ले रहे हैं, हम डिसिप्लिन बेस्ड लैंग्वेज, बेसिंग ऑन डिसिप्लिन लैंग्वेज का रजिस्टर्स है, डिसिप्लिन बेस्ड लैंग्वेज, हम उन दोनों के बारे में गुरुवार की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आई विल पोस्ट दिस पावर पॉइंट जस्ट नाउ इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आपको अभी मिलेगा। ठीक है, ओके, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव फॉर योर नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव फॉर योर नेक्स्ट क्लास। कुछ पूछना है? No, ma'am. Okay then. No, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you. क्लास खत्म हुआ तो एक बार बाय तो बोलो, आप सुन रहे हो कि नहीं पता भी नहीं चलता मुझे।
Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. सुन रहे हैं मैम. Bye. Wow. It was just phone. దానిలో అది ఎందుకు ఇది రావటం లేదు వాట్సాప్ తెలియటం దాన్ని తీసేసి మళ్ళీ ఇలా ఇది చేయటానికి లేదా వాట్సాప్ తీయటానికి చూస్తే కూడా ఏం రావటం లేదు డెస్క్టాప్ గురించి డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ గురించా నేను వీళ్ళని మామూలు ఇప్పుడు దీంట్లో ఇది ఉంటుంది